العالمین قبول فرمائے۔ اس کے بعد نظم پیش کرنے کے لیے جناب عبدالباری محمد شفیع صاحب سے گزارش ہے کہ آپ نعت یا حمد نظم جو پیش کرنا ہو پیش کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیونکہ ایک نظم پیش کرنے کی فرمائش تھی اس لیے میں نظم پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ جی انشاءاللہ۔ شرک و بدعات کا بازار لگانے والے اور بریلی و مزارات پہ جانے والے، شرک و بدعات کا بازار لگانے والے، او بریلی و مزارات پہ جانے والے، ڈھول تاشے جو مزاروں پہ بجاتے ہو تم، اور ہفتے میں جو میلہ سا لگاتے ہو تم، پھول چادر جو مزاروں پہ چڑھاتے ہو تم، کیوں مزاروں کو ہی بیوپار بناتے ہو تم، شرم تجھ کو نہیں آتی ہے کہ تو ڈوب مرے، تجھ کو کس نے دی اجازت کی خرافات کرے، اپنے ایمان کو بیچ کے کھانے والے، او بریلی او مزارات پہ جانے والے، او بریلی او مزارات پہ جانے والے، بھوج پارٹی کو ہی میلاد سمجھتا ہے تو، دین مقبول ہے ایجاد سمجھتا ہے تو، شہر ویران کو آباد سمجھتا ہے تو، کیا شریعت کو بھی آسان سمجھتا ہے تو، تیرے ہونٹوں سے کلمہ نہیں اچھا لگتا، عشق نبوی کا دعویٰ نہیں اچھا لگتا، خود کو پیروں کا بھی محتاج بنانے والے، خود کو پیروں کا بھی محتاج بنا، خود کو پیروں کا بھی محتاج بتانے والے، او بریلی او مزارات پہ جانے والے، او بریلی او مزارات پہ جانے والے، تم جو ہر سال مناتے ہو یہ میلاد نبی اور کہتے ہو کہ یہ عید ہے عید سنی، کیا صحابہ نے بھی یہ عید منائی تھی کبھی، کیا صحابہ سے بھی بڑھ کر نبی، میرے آقا کے جنم دن پر یہ مجرا کیسا، میرے آقا کے جنم دن پہ یہ مجرا کیسا، اور محفل میں طائف کا یہ جلوہ کیسا، طرز عیسائی پہ او خود کو چلانے والے، او بریلی او مزارات پہ جانے والے، ہم تو کہتے ہیں کہ آقا کی ولادت رحمت، ہم تو کہتے ہیں کہ زندہ ہو نبی کی سنت، ہم تو کہتے ہیں کہ آقا سے ہو دل سے الفت، ہم تو کہتے ہیں کہ آقا کی غلامی قسمت، عشق نبوی تو شریعت پہ ہے چلنے کا نام، شرک و بدعات کے دل نکلنے کا نام، خود کو غیروں کے طریقے پہ چلانے والے، خود کو غیروں کے طریقے پہ چلانے والے، بریلی و مزارات پہ جانے والے، بریلی و مزارات پہ جانے والے، تجھ کو نظر
کو جانا ہے ہر ایک شخص کے گھر دیجے میں، تجھ کو جانا ہے ہر ایک شخص کے گھر دیجے میں، بخشواتا کو سوال میں، اسلام کو کیا کھیل سمجھ رکھا ہے، کیا شریعت کو نمک رکھا ہے، پیٹ پوجا کے لیے عرس منانے والے، او بریلی او مزارات پہ جانے والے، او بریلی او مزارات پہ جانے والے، ہے میرا کام زمانے کو بتانا اظہر، آئینہ دین کا امت کو دکھانا اظہر، وہ تو پچھتائے گا حق کو جو نہ مانا اظہر، سب کو معلوم ہے باطل کا ٹھکانا اظہر، سن کے ہونا نہ خفا دوست نصیحت میری، کڑوی گولی ہی کھلانے کی ہے عادت میری، فکر عقبہ بھی ذرا کر لو کھانے والے، او بریلی او مزارات پہ جانے والے، شرک و بدعت کا مسئلہ لگانے والے، او بریلی او مزارات پہ جانے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کو، اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو تمام اور انہی تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے الحمدللہ آج کا یہ پروگرام ہمارے درمیان میں شیخ صاحب کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ جو آج الحمدللہ متعین ہوا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم جس ملک اور وطن میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں ملک ہندوستان، اسی طریقے سے پاکستان، بنگلہ دیش، ان تمام ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ طرح طرح کے بدعات و خرافات میں مبتلا ہیں۔ انہی تمام چیزوں کی کوششیں ہمارے آج کے مہمان خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر سید معراج ربانی حفظہ اللہ نے الحمدللہ تقریباً 2 دہائیوں سے، میرے خیال سے 2000 سے لے کر کے اب تک ملک ہندوستان سے بدعات و خرافات مٹانے کی کوشش کرتے رہے، اور الحمدللہ بہت حد تک کامیاب ہوئے، اور شیطانی ہتھ کنڈے ان کے پیچھے لگائے گئے، سازشیں کی گئی، اور ناپاک اور بدترین پروپیگنڈے تیار کیے گئے جیسے حق کو دبایا جائے۔ لیکن آج کے اس ماڈل اور نئے دور میں اس طرح کی نئی نئی چیزیں ایجادات میں آئیں جن کے ذریعے سے ہم شیخ کی باتوں سے، شیخ کے علم سے مستفید ہوتے رہے، فائدہ حاصل کرتے رہے، اور اسی چیز کا آج ہم استعمال کرتے ہوئے الحمدللہ ماہ رجب کے فضائل کے تعلق سے شیخ سے ہم استفادہ حاصل کریں گے۔ میں آپ تمام لوگوں سے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے مائک میوٹ رکھیں، بالکل بھی آواز نہ کریں، اور شیخ کی باتوں کو سنیں اور اس کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ میں شیخ سے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر سید معراج ربانی حفظہ اللہ آپ اپنے قیمتی بیان سے ہم تمام کو مستفید فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر بھائی، ایک ریکویسٹ ہے کہ جو ہم لوگ کا یہ ہے 40 منٹ کا لمٹ شیخ پروگرام شروع کرنے والے آ چکے ہیں، تو ہم لوگ ایک کام کریں کہ شیخ صاحب عبد الرحمان معراج صاحب موجود ہیں، تو اگر شیخ اس لیے کہ آدمی تقریر کر رہا ہو پھر بیچ میں ڈسکنیکٹ ہوتا ہے تو اس میں خلل پڑتا ہے، تو عبد الرحمان بھائی سے درخواست ہے کہ اگر ایسا ہو تو شیخ کو روکیں نہیں، شیخ اپنا تقریر جاری رکھیں اور ہم لوگ ری جوائن ہوتے رہیں، ٹھیک ہے؟ ایک بار میرے خیال سے 30 منٹ ہو چکا ہے، سارے بھائیوں سے بحث رکھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
इन्न इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौम खल्क़स-समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिका ad-दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम किस्म की हम्द व सना, किबरियाई और बड़ाई उस अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लिए लायक व ज़ैबा है जिसने हमें और आपको पैदा फरमाया, और बेशबहा दरूद व सलाम उस ज़ात मुबारका मुतहरा पर जिनका नाम नामी इसमें गिरामी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, नौजवान दोस्तों और भाइयों और काबिल एहतराम इस्लामी माँ और बहनों, आज बतारीख 18 रजब 1442 हिजरी मुताबिक 2 मार्च सन 2021 ईस्वी के इस ऑनलाइन ज़ूम की मीटिंग में, प्रोग्राम में, जिसे हमारे अहबाब ने मुनाकिद किया है, शहर हाइल सऊदी अरब से आप हजरात की खिदमत में मैं कुछ गुजारिशात लेकर के हाजिर हुआ हूँ। आज का मौजू है माह रजब के फ़ज़ाइल। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें अपने नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर और तरीक़े पर उनके अपने बताए हुए तालीम के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ बख्शे। कुरान करीम की जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की है, सूरह तौबा आयत नंबर 36 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें 4 महीनों की ख़ुसूसियत बयान फरमाई है, और ये बयान फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक 12 महीने हैं जब से दुनिया ज़मीन और आसमान को अल्लाह ने बनाया है, और इन 12 महीनों में 4 महीने अशहूर हुरुम यानी हुर्मत वाले महीने कहलाते हैं। ज़ालिका ad-दीनुल क़य्यिम, यही सबसे सीधा दीन है, सच्चा दीन है। तो अल्लाह ने फरमाया फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, तो इन 4 महीनों में अपने नफ्सों के ऊपर जुल्म न करो। मुफस्सिरीन ने बहुत सारी तफसीरात में इस बात वाज़ेह खुलासा ये बयान किया है कि ये हुर्मत वाले महीने अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें एजाज़ बख्शा, इन्हें मुकर्रम और मोहतरम बनाया। इसकी वजह ये थी कि ताकि चूँकि 3 महीने कंटिन्यू ये हज के महीने आते हैं, 2 महीने मतलब हज के अय्याम हैं, ये ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम का महीना आता है, तो हाजी लोग हज करते हैं, तो इसको इस महीने को हराम इसलिए किया गया ताकि कोई किसी के ऊपर जुल्म और ज़्यादती ना करे। आपको पता है कि इससे पहले इसी ममलकत में, या ममलकत का वजूद नहीं था बल्कि अरब के अंदर हाजियों के ऊपर जो भी हज करने आते थे, जो हुकूमतें थी, कोई कंट्रोल नहीं था, लोग लूट पाट करते थे। और इससे पहले भी जब से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने, बल्कि बहुत पहले से ही बहरहाल लूट मार के सिलसिले थे, तो अरब भी इस महीने में हाजियों को लूटना पाटना, उनको बहुत सारी चीज़ें थी, तो अल्लाह ताला ने इन महीनों में जुल्म और ज़्यादती को हराम करार दिया। रजब का महीना, जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जुमादा यानी जुमादल आखिरा और शाबान के महीने में के बीच में है रजब का महीना, इसको भी हराम करार दिया गया क्यों, ताकि उम्रा वगैरह करने में लोगों को आसानी हो, सहूलत हो। और ये रजब का महीना पिछले ज़माने जाहिलियत में भी इसको कबीले मुज़र इसे मुअज़्ज़ज़ समझते थे, और इस महीने में अपनी कुर्बानियाँ वगैरह पेश करते थे। अलमुहिम कहने का मतलब यह है कि ये 4 हुर्मत के महीने हैं, इसकी शर्फ और मंजिलत यही है। और ये अल्लाह तबारक व तआला का अपना अब उसकी हिकमत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ अय्याम पे फजीलत अता फरमाई है, बाज़ मकाम को बाज़ मकाम पे फजीलत अता फरमाई है। अब आप यही देखिए कि मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने का जो सवाब है वो खाने काबा से मुख्तलिफ है, खाने काबा में जो नमाज पढ़ने का सवाब है वो बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ने से मुख्तलिफ है। तो जो मकामात के तब्दील होने से अजर व सवाब के अंदर भी तब्दीलियाँ आती हैं, इसी तरह ज़माने के तब्दील होने से, वक्त और हालात के बदलने से भी अजर व सवाब के अंदर फ़र्क पैदा होता है। चुनांचे आप ये देखिए, बाज़ महीनों पे अफजल हैं, जैसे रमज़ान मुबारक का महीना है, बाज़ अय्याम पे अफजल हैं, जैसे जुमे का दिन है हफ्ते में, वो अफजल हैं और वो दिन अफजल है तमाम दिनों के ऊपर। इसी तरह से यानी कहने का मतलब यह है, मुख्तसर आप ये समझें कि अल्लाह तबारक व तआला की यह हिकमत है। और फिर उन अय्याम में इबादत करने के अजर व सवाब भी मुख्तलिफ हो जाते हैं। आम तौर पर रोज़ा रखने का जो अजर व सवाब है, रमज़ान में रोज़ा रखने के सवाब से बहुत मुख्तलिफ है। इसी तरह से
راتوں میں دیکھ لیے بعض راتیں لیلۃ القدر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں باقاعدے اس کی فضیلت بیان فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سال کے 12 مہینے جو ہیں یہ یوم خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان جب سے پیدا کیے گئے تب سے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھ لیں کہ کوئی بھی مہینے آج کل کے جیسے انگریزی کے 12 مہینے ہیں، ہندی کے 12 مہینے اور دیگر دھرم کے اندر مختلف مہینے ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدے یہ پہلے سے ہی مقرر مہینے اللہ رب العزت نے یہ 12 مہینے بنائے ہیں۔ المہم آج ماہ رجب ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، 18 تاریخ ہے آج۔ میں اس تعلق سے آپ حضرات کی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے فضیلت کے تعلق سے گفتگو اور اس کے بالمقابل جو اس کے اندر جو بدعات اور خرافات ہیں اس تعلق سے بھی کچھ گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں کروں گا۔ میں فضائل کے تعلق سے صرف اتنی بات آپ یاد رکھیں کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے اور اس کی افضلیت یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اس کے اندر گناہ اور ظلم اور زیادتی، قتل، غارت گری اور تمام سب چیزیں یہ عام لوگوں کے لیے منع کر دیا گیا ہے کہ اس کے اندر نہ کریں۔ کفار مکہ بھی ان مہینوں کی عزت کرتے تھے اور اسلام کے اندر بھی، تو بدرجہ اولا ہم بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس حرمت کا خیال رکھیں اور اس حرمت کے مہینے میں بندگی کریں، اللہ رب العزت کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ خوش ہو، راضی۔ ایک بات آپ یہ بات دھیان میں رکھیں کہ جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے عظمت دی ہے، جن چیزوں کو اللہ نے وقار بخشا ہے، جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے مقام عطا فرمایا ہے، ان کی تعظیم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے اوپر فرض ہے، ضروری ہے۔ خانہ کعبہ کا بیت اللہ کے نام سے اور خانہ کعبہ کا وقار اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ کے شعائر ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، کہ جو شخص اللہ کی احترام والی چیزوں کی تعظیم کرے تو یہ بات اس کے پروردگار کے ہاں اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ عزیزان گرامی، ایک دو تین بنیادی باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا، پھر فضائل کے تعلق سے کچھ مخصوص روایات ہیں ان کا بھی میں آپ حضرات کی خدمت میں جائزہ پیش کروں گا غور سے، اور مختصر وقت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا لوں گا۔ ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ دین کی بنیاد کلمہ توحید پہ ہے، اور کلمہ توحید کے 2 اجزاء ہیں، 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اخلاص ہے، للہیت ہے، توحید پر مبنی، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا کہ وہ صرف اور صرف اخلاص کے ساتھ اللہ عز و جل کی عبادت کریں اور اللہ کی طرف مائل ہو جائیں، یعنی تمام ادیان سے، تمام افکار، تمام خیالات، اپنی مرضیات، اپنی خواہشات، باپ داداؤں کے طور اور طریقوں سے منہ موڑ کر حنفاء اللہ کی طرف راغب ہو جائیں، اللہ کی طرف مائل ہو جائیں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، قائم کریں نماز کو اور زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہ سب سے بہترین راستہ ہے۔ تو ایک تقاضا تو توحید کا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ ہے ایک حصہ جس کا اخلاص، اور دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا تقاضا اتباع سنت ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر کری ہے ان کی تصدیق کرنا، چاہے ہماری سمجھ میں آوے چاہے نہ آوے، چاہے ہم نے دیکھا یا نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت دیکھی ہے، ہمیں یقین ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم ایسی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، ہمیں یقین ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت آئے گی، اللہ کے نبی نے فرمایا قبر میں سوال و جواب ہوں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا منکر نکیر آئیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت بپا ہوگی، میزان لگے گا، ترازو قائم ہوگا اور سب کا عدل اور انصاف ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پل صراط ہے، اس کے اوپر سے سب کو گزرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی پرشش اور سب سے پہلے میدان محشر میں نماز کی پوچھ گچھ ہوگی۔ یعنی یہ تمام سب چیزیں جو کچھ بھی ہمیں بتایا گیا، غیبیات ہوں یا جو مشاہدات جو اللہ کے نبی نے اپنے بتائے، ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ان تمام اخبار کی، ان تمام خبروں کی اپنے دل اور اپنے جان سے بھی زیادہ معتبر سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ ہمارے نبی نے یہ سچی بات بیان فرمائی ہے۔ اور نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ان باتوں کو اوپر عمل کیا جائے، اور جن باتوں سے آپ نے منع فرمایا ان باتوں سے رکا جائے۔ یہ 3 چیزیں ہمارے اوپر ضروری ہیں نبوت کے اعتبار سے، کہ ہم نبی پر ایمان لائیں، نبی نے جو کچھ بھی ہمیں بتایا اس کے اوپر ایمان لائیں، اور نبی نے جن چیزوں کا حکم دیا اس کو کریں، اور جن چیزوں سے منع کیا اس سے رک جائیں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت نے
कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि फमन काना यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। जो शख्स अपने परवरदिगार से मिलने की उम्मीद रखता है, आरजू रखता है, यकीन रखता है, उसे चाहिए कि वो नेक अमल करे और अपने रब की इबादत और बंदगी में किसी दूसरे को शरीक न ठहराए। सूरह अल कहफ आयत नंबर 110। तो मेरे अजीजों, ये तो हो गई बात ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ताल्लुक से। दूसरी बात ये भी याद रखें अच्छी तरह से कि जितनी भी इबादतें हैं, जितनी भी छोटी से छोटी इबादत या बड़ी से बड़ी इबादत, इबादत जितनी भी है, इन तमाम इबादतों, ये सारी इबादतें तौकीफी हैं। तौकीफी का मतलब क्या है? तौकीफी का मतलब यह है ठहर जाना। वक़्फ़ा युवक़्क़िफ़ु, तौकीफ के माने होते हैं ठहरना। जैसे आप अरब में अगर रहते हैं तो अरब में आपने देखा होगा कि या इंग्लिश में भी स्टॉप लिखा रहता है, अरब में वक़्क़िफ़ लिखा होता है, वक़्क़िफ़ है ना। तो यह कहते हैं ठहरना, ठहर जाओ। तौकीफ उसी से है, यानी सब इबादतें तौकीफी हैं। तौकीफी का मतलब क्या है? तौकीफी का मतलब यह है कि उन इबादत, कोई भी इबादत हो, अपनी मनमानी नहीं करना, अपनी मनमानी की कोई गुंजाइश उसमें नहीं है, इसलिए कि तरीक़े इबादत के लिए सलफ की इत्तिबा करना हमारे लिए जरूरी है। सलफ़ सालिहीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, अस्साबिक़ून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह तौबा आयत नंबर 100 में फरमाया कि वो साबिक़ून अव्वलून जो सबसे पहले मुसलमान लाए और इस्लाम को कबूल किया और उन्होंने वो मुहाजिरीन में से हो या अंसार में से हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वो लोग और जो लोग उनकी इत्तिबा करें, यही असलाफ हैं, सलफ हैं, उन जो लोग इनकी इत्तिबा करें बेहसान, इखलास के साथ, एहसान के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए जन्नत तैयार करके रखी है। तो कहने का मतलब यह है कि अपनी मनमानी इबादत में नहीं कर सकते, इसलिए कि इबादत का तरीका खुद अल्लाह ने अपने नबी को बतलाया, नबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया, अल्लाह ने अपने नबी को बताया, नबी ने हजरात सहाबा को बतलाया और हजरात सहाबा ने अपने शागिर्दों को बतलाया। तो सलफ़ सालिहीन का जो इबादत का जो मौक़िफ़ और समझ है, उन्हीं आमाल को अपनाना हमारे लिए वाजिब और ज़रूरी है। बाद में आने वाले लोगों ने जो इबादत व बंदगी के नए नए अजर व सवाब के तरीक़े अपनाए और गढ़े, ये सरासर जो है बिदा, ये सरासर शर है, फसाद है। लिहाजा जिस इबादत को अल्लाह ने या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी वक्त या किसी भी जगह के साथ खास नहीं किया है, गौर से सुनिए, जिस इबादत को अल्लाह तबारक व तआला ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी वक्त या किसी जगह के लिए खास नहीं किया, उस इबादत को किसी वक्त या किसी जगह के साथ खास करने की किसी को इजाजत नहीं है। कोई नहीं कर सकता कि आज रोजा रखो, कल ये करो, फला दिन ये करो, किसी को यह हक हासिल नहीं है, क्योंकि हमें शरीयत इलाहिया के मुताबिक, हमें अल्लाह की शरीयत की नाजिल करदा शरीयत के मुताबिक इबादत करने का हुक्म दिया गया है। अपनी ख्वाहिशात, अपने जज्बात, अपनी मर्जियात के मुताबिक हमें अमल करने का हुक्म नहीं दिया गया। इसलिए हमारे लिए समअ सुनना है और इताअत करना है। किसकी सुनना है? अल्लाह और उसके रसूल की, और इताअत और इत्तिबा किसकी? अल्लाह और उसके रसूल की। और हमारे लिए अहकामात इलाहिया पर अमल करना ये जरूरी है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह नूर आयत नंबर 51 में क्या इरशाद फरमाया? इन्नमा कान क़ौलल मुअमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अतअना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। कि मोमिनीन का जो मोमिनीन होते हैं, जब उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है ताकि उनके दरमियान वो फैसला करें, तो बिल्कुल अल्लाह यक़ूल, वो क्या कहते हैं? समिअना, हाँ हमने सुना, व अताना, और हम इसकी इताअत करते हैं। अल्लाह फरमाता है व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही लोग कामयाब होंगे। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये मुख्तसर सी बात हमने आप हज़रात की खिदमत में रखी है। इसमें कोई शक नहीं कि माह रजब ये बरकत वाला महीना है, मुअज़्ज़म महीना है और हुर्मत वाले महीनों में से एक हुर्मत, यानी इसमें तो गुनाह करना, शर करना, फसाद करना, बिदात करना, शिर्क करना वैसे तो आम महीनों में भी हराम है, इसमें बदर्जे औला हराम है। लेकिन इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं कि हम इस महीने में
حرمت والے مہینے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایسی عبادات کریں جن کی شریعت نے ہمیں کوئی اجازت نہیں دی ہے یا شریعت میں جس کی اصل موجود نہیں ہے. اس لیے اس ماہ میں خصوصی نوعیت کی نماز پڑھنا یا مخصوص رات کو قیام کرنا یا اس رات میں جشن منانا، اس کی راتوں میں یا روزہ رکھنا یہ وغیرہ یا صدقہ اور خیرات سوچ کر کے کرنا کہ حرمت والا مہینہ اس میں زیادہ اجر ملے گا، زیادہ، ایسا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے. یاد رکھیں ماہ رجب کا مقام بھی دیگر حرمت والے مہینوں کی طرح ہے. جیسے محرم کا مہینہ حرمت والا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے، ذی القعدہ، بے شک اسی طرح اس کے بارے میں آنے والی جتنی بھی مخصوص روایتیں میں ابھی بتاؤں گا، کچھ روایتیں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. بعض وہ روایتیں بڑی عجیب و غریب، آپ تو سوچیں گے کہ واہ یہ تو گھر بیٹھے اس ماہ رجب میں ہم لوٹ لیں اجر و ثواب. میں آپ کو ابھی سے وارننگ دے رہا ہوں اور ابھی سے یہ بات بتایا دے رہا ہوں کہ وہ ساری کی ساری روایتیں موضوع ہیں، انتہائی گڑھی ہوئی، ضعیف، اور یعنی بالکل اہل علم کے نزدیک، محدثین کے نزدیک ان روایتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ان روایتوں سے کوئی شرعی حکم نہیں لیا جا سکتا. لوگ اس مہینے میں جو مخصوص اعمال کرتے ہیں وہ دور جاہلیت کے اعتبار سے وہ کرتے ہیں. بہرحال دور جاہلیت کے کچھ اثرات ہیں، ان اثرات کی بنا پر یہ سب کرتے ہیں. اس لیے سنت کے طریقے پر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سنت کے طریقے پر کاربند رہیں، سنتوں کے شیدائی بنیں، نبی کے طریقے کو اپنے جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھیں، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کو اپنائیں. یہی سچی محبت کا اور یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا تقاضا ہے. صرف زبان سے کہتے رہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. صرف زبان سے کہتے رہیں عشق ہے، عشق پیا کبھی نہ پیا، عشق عشق عشق، یہ تمام بکواس، اس کی کوئی حیثیت اللہ کے ہاں نہیں ہے. حیثیت یہ ہے کہ جتنی باتیں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتلائی ہیں ان باتوں کو ہم عمل کریں، بدعات سے دور رہیں، ایک دوسرے کو نصیحت کریں، باہمی طور پر حق بات کے پر چلنے اور صبر کرنے کی تلقین کریں. اللہ عز و جل نے اہل کتاب جو یہود و نصارہ تھے ان کو فرمایا یا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. اے اہل کتاب تم اپنے دین میں ناحق طور پر غلو اور زیادتی نہ کرو، بدعات نہ ایجاد کرو، اور ایسے قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو خود بھی گمراہ ہوئے، لوگوں کو گمراہ کیا، بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا اور وہ خود بھی صراط مستقیم سے ہٹ گئے. سورہ مائدہ آیت نمبر 77. اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتباع حق یعنی حق کی پیروی کرنا سب سے ضروری ہے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح دین پر چھوڑا ہے، ایک ایسی شاہراہ پر چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. نبی کائنات نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا. ہم نے اے میری امت کے لوگوں تمہیں ایک ایسے راستے پر، ایک ایسی شاہراہ پر چھوڑا ہے، ایک ایسے ہائی وے پر چھوڑا ہے، اللہ اکبر، جو رنگ روڈ ہے، جو اللہ اکبر، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے. اور اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، بلکہ اس سے پہلے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. ہاں فلا تخشوہم واخشونی، کافر مردودوں سے نہ ڈرو، اللہ فرماتا مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور بحیثیت دین اسلام سے میں راضی اور خوش ہوا، یعنی میرا پسندیدہ دین اسلام ہے. عزیزان گرامی، اس لیے جو شخص نجات چاہتا ہے، جو شخص کامیابی چاہتا ہے، فلاح چاہتا ہے، اجر چاہتا ہے، ثواب چاہتا ہے، دنیا اور آخرت کی انتی چاہتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائے ہوئے طریقے پر، شریعت پر اکتفا کرے. بس دیٹس آل. ہم نبی کی، اللہ کی بھیجی گئی نبی کے اوپر، نبی کے ذریعے لائی شریعت کے اوپر ہم اکتفا کرتے ہیں. اور یاد رکھیں نت نئے روزانہ صبح و شام افکار اور نئے نئے افکار اور بدعات ایجاد کرنا، یہ فتنے جنم لیتے ہیں ان بدعات سے. اور جہاں فتنے ہوتے ہیں ان سے آزمائشیں اور تنگیاں پیدا ہوتی ہیں، ان بدعات سے تنگیاں پیدا ہوتی ہیں، بھکمری آتی ہے، گناہ اور بدی جنم لیتی ہے. بدعات سے سنتوں کی راہوں میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں. خود بنائے ہوئے افکار و خیالات سے امت کے اتحاد میں سبوتاز پیدا ہوتا ہے. ٹکڑے ٹکڑے ان بدعتوں کی وجہ سے امت ہو جاتی ہے. دین کا خلل ہے بدعت ایجاد کرنا. عقل کی کمی اور عقل و فطرت میں خرابیاں ہوتی ہیں.
کرنے سے. اور یاد رکھیے کہ کوئی بھی قوم جس قدر بھی بدعات ایجاد کرے گی تو اتنے ہی وہ قوم سنت سے دور ہوتی جائے گی، سنت سے دور ہوتی جائے گی. جتنی بدعتیں ایجاد ہوں گی سن دو، اور ذلت و رسوائیاں ان پر تھوپ جائیں گی. کیونکہ مسند احمد کی روایت پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جعل الذلت والصغار علی من خالف امری. یاد رکھو ذلت و رسوائیاں اس قوم کا مقصد ہو جاتی ہیں، اور ذلت و رسوائیاں اس قوم کے منہ پہ تھوپ دی جاتی ہیں، مار دی جاتی ہیں جو قوم میرے طریقے کو چھوڑ دے. جعل الذلت علی من خالف امری، جو میرے لائے ہوئے دین اور شریعت کی مخالفت کریں. اور ایک حدیث سنیں حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ کہتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا فوعظنا موعظة ووجلت منها القلوب، فقال يا رسول الله كان هذه مؤدية فما تحضرنا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه منكم من يعيش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء إلى آخر الحدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عرباض ابن ساریہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور ایک ایسا خطبہ دیا جس سے آنکھیں بھر آئیں اور دل لرز گئے. تو کسی کہنے والے نے کہا اللہ کے نبی ایسا لگتا ہے کہ یہ آخری خطبہ ہے، تو ہمیں کچھ بتائیے، ہمیں کچھ سمجھائیے کہ ہم کیا کریں، ہمیں کچھ وصیت کیجیے. تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں سمع و اطاعت یعنی اپنے بڑوں کی، اپنے امیروں کی باتوں کے سننے اور اطاعت کرنے کی میں تمہیں اللہ کے تقوی کے ساتھ وصیت کرتا ہوں، بھلے وہ تمہارا حاکم کالا کلوٹا غلام ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت زیادہ اختلاف میری امت میں دیکھیں گے. اللہ اکبر، یہ نبی کی پیشین گوئی تھی. امت میں اختلاف ہوگا، اختلاف ہوگا، اختلاف ہوگا، کوئی کہے گا یہ، کوئی کہے گا یہ، کوئی کہے گا اللہ. اس وقت اس کا حل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ ایسے اختلاف کے موقع پر حل کیا ہے؟ سنو، یہ ہے حل. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، اس وقت میری سنت کو لازم پکڑنا، میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا. وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور یہ ہدایت یافتہ صراط مستقیم پہ چلنے والے جو میرے خلفاء ہیں، صحابہ، ان کو تم ان کی باتوں کو مضبوطی کے، ان کی طریقے کو مضبوطی سے پکڑنا. میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت. تمسکوا بها، مضبوطی کے ساتھ پکڑنا. وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اپنے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا. جیسے رسی جب چھوٹنے لگتی تو بندہ کیسے داڑوں سے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑنا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار ہمارے دین میں، امور میں، شریعت میں نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے سے گڑھنا. اور ہر بدعت میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائی، بہت زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں ان سب چیزوں کی تشریح کروں. ان احادیث مبارکہ پر آپ غور کریں، سوچیں کہ یہ کتنی ہمارے لیے کتنی واضح باتیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے لائے ہوئے اس دین میں جو کوئی نئی بات کا اضافہ کرے وہ مردود ہے. صحیح مسلم کی روایت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہم نے نہیں کیا ہے، جو عمل ہم نے نہیں کیا ہے اور ہمارے دین میں وہ عمل کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ مردود ہے، وہ مردود ہے. اور جانتے ہیں آپ، جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ایک بدعتی جو ہوتا ہے وہ بدعت ایجاد کر کے گویا کہ وہ دین اور عقل اور سب کو انکار کرتا ہے، اور بدعتی گویا کہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول سے زیادہ جاننے والے ہیں، اس لیے نئی باتوں کا اضافہ کر کے وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا
वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा, ए अल्लाह हमें हक को हक दिखा और बातिल को हक और उसके इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमा, और बातिल को बातिल दिखा और उससे बचने की तौफीक अता फरमा। यही रजब का महीना है। इस रजब के महीने के ताल्लुक से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी हदीसें गढ़ी हैं। मैं आपको बहुत ज्यादा तो नहीं बता सकता, 2-4 आपको मैं बताता हूं। कुछ लोग एक हदीस कहते हैं कि जनाब अली, आइए मैं आपको बताता हूं। कहते हजरत मूसा इब्न इमरान कहते हैं कि मैंने हजरत अनस बिन मालिक को यह कहते हुए सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जन्नत में एक दरिया है जिसको रजब कहा जाता है। उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, और जो शख्स माह रजब का एक रोजा रखेगा अल्लाह उसे उस दरिया का पानी पिलाएगा। यह बकवास है, मौजू, झूठी रवायत। इसी तरह कहते हैं कि इकरमा ने हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। यह भी कज्जाब, झूठ, मौजू रवायत। इसी तरह एक और रवायत हज़रत अनस इब्न मालिक से कहते हैं कि जन्नत में एक महल है जिसमें माह रजब के रोजेदारों के अलावा और कोई नहीं जाएगा, यानी खास बिल्डिंग है जिसमें सिर्फ वो लोग जाएंगे जो माह रजब के अंदर रोजे रखें। ये सब राफजी शियों की गढ़ी हुई रवायतें हैं। मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा। ये पहले आप चंद रिवायतें, ये हज़रत अबू हुरैरा से मरवी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने माह हराम यानी रजब के 3 दिनों जुमेरात, जुमा और हफ्ता के रोजे रखे तो अल्लाह ने उनके लिए 900 बरस कौन जिंदा रहता भैया, तो फिर खलास और 900 बरस की इबादत, ये सब बकवास है, झूठ है। कभी सवाब हो जाएगा, गुनाह मिलेगा। इसी तरह कहते हैं कि रजब की खेती बोने का, शाबान पानी सींचने का और रमजान खेती काटने का महीना है, और हर शख्स वही काटेगा जो उसने बोया होगा। लिहाजा बंदे को चाहिए कि वो रजब के महीने में से गाफिल ना रहे। इसी तरह बहुत सारी चीजें मैं क्या बताऊं, अल्लाह अकबर। इसी तरह कहते हैं अब्दुल्लाह इब्न जुबैर बयान करते हैं कि माह रजब में जो शख्स किसी मोमिन की सख्ती दूर करेगा अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में एक बहुत बड़ा महल देगा। खूब सुन लो, माह रजब की इज्जत क्या करो, अल्लाह ताला तुम्हें 1000 इज्जतें नसीब फरमाएगा। ये रिवायत भी झूठी है, मौजू है। इसी तरह कहते हैं कि रजब का महीना जब शुरू होता है तो नबी करीम फरमाते थे, ए अल्लाह रजब और शाबान के महीनों में हमें बरकत अता फरमा और रमजान तक हमको पहुंचा। ये रिवायत भी ज़ईफ है। इसी तरह अबू ज़र ग़िफ़ारी से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिस शख्स ने माह रजब का पहला रोजा रखा उसके सवाब को 1 महीना भर के रोजों के सवाब बकदर दिया जाएगा, और जिसने 7 रोजे रखे उस पर जहन्नम के 7 दरवाजे बंद, और जिसने 8 रोजे रखे उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, और जिसने 10 रोजे रखे अल्लाह ताला उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देगा। और जिस शख्स ने माह रजब के 18 रोजे रखे तो एक पुकारने वाला आसमान से पुकारेगा कि अल्लाह ताला ने तेरे पिछले तमाम गुनाह माफ फरमा दिए, लिहाजा अब नए सिरे से अमल करने की तुझे कोई जरूरत ही नहीं है। तो तेरे लिहाजा अब नए सिरे से तू अमल करना शुरू कर दे, तेरे पिछले गुनाह माफ हो गए, अब इसके बाद से अब नए अमल करना तू शुरू कर, वो भी गुनाह अगले साल तक देखे जाएंगे। बहर अलगरज मैं आपको क्या बताऊं, एक ही नहीं कई रिवायतें अस्तगफिरुल्लाह भरी पड़ी हैं। और एक मुफ्ती, बहरहाल क्या बताएं, ये बिदतियों के यहाँ ये रिवायतें बड़ी काबिल कबूल समझी जाती हैं। अलमुहिम हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह मुहद्दिस हैं, साहिब फतहुल बारी हैं, शरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह किताब जामिउ सहीह बुखारी जो है उसकी शरह करने वाले फतहुल बारी, वो अपनी किताब तबयीनुल अजब बिमा वरदा फी फज़ाइल रजब, ये किताब उसमें वो लिखते हैं और बहुत सारी रिवायतों को जमा किया उन्होंने, और कहते हैं ये सारी रिवायतें इसनादी हैसियत को उन्होंने वादे किया। फज़ाइल रजब से मुतालिक जो भी रिवायत वो कहते हैं कि ये सारी रिवायतें या तो ज़ईफ हैं या मौजू हैं, बस इसके अलावा इसमें कोई और रिवायत नहीं। खास रजब से किसी न मखसूस रोजे की रिवायत मौजूद है, न मखसूस इबादत की रिवायत मौजूद है, न मखसूस अमल का कोई इसमें दखल है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, बहरहाल अलबत्ता यह है कि यह एक हुर्मत वाला महीना है, इसकी यही फजीलत है कि यह हुर्मत वाला मुबारक महीना है। अब दुआ करो, इसमें जाहिर है रोजा रखना मना नहीं है, लेकिन रोजा जैसे जुमेरात के रोजे, पीर के रोजे आम महीनों में रखते हैं वो रखिए। इसी तरह अय्याम 20 के रोजे हैं वो रखिए, 12, 13, 14, इसी तरह से वो अलग चीज है, लेकिन इस महीने की मुनासिबत से ये रखना ये तमाम सब बिदात और खुराफात हैं। अज़ीज़ान गिरामी, एक माह रजब की बिदात के ताल्लुक से आपको बताया
कि ये मदर का ये महीना कहलाया जाता था। अतीरा एक ज़बीहा होता था खास, वो ज़बा करते थे और इसकी वो करते थे। बहरहाल इसी तरह से अब मुसलमानों के अंदर इसके कुछ अय्याम खास कर लिए गए जिसके अंदर वो बिदात होती है। वो मैं आपको बताऊं वादे तौर पे। एक तो 22, आज तो 18 है, 18/4/22, यानी 4 दिन के बाद एक दिन आएगा 22 रजब। इस दिन रजब के कूड़े भरे जाते हैं। यह भी मैं आपको बस मुख्तसर में बताऊंगा। रजब के कूड़े की हिकमत और इसकी खास वो क्या है। ये असल में शियों की इजाद है। 22 रजब को कूड़े भरे जाते हैं। और कूड़ा किसके नाम का भरा जाता है? इमाम सादिक रहमहुल्लाह का, जो फ़िक़्ह जाफरिया के इमाम हैं। जैसे 4 इमाम अहलुस्सुन्ना में हैं, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह। ऐसे शियों के 5वें इमाम इमाम जाफर सादिक, फ़िक़्ह जाफरिया, फ़िक़्ह हनफिया, शाफिया, मालिकिया, हंबलिया और जाफरिया। तो शियों के यहाँ, राफ़िज़ियों के यहाँ ये इमाम जाफर सादिक की नियाज 22 रजब को कूड़े के नाम पे की जाती है। इमाम किसके नाम से? इमाम जाफर सादिक के नाम से कूड़ा भरा जाता है। और कूड़ा एक जमाने जाहिलिया जब हम थे बिदती और मुशरिक और बरेली थे, उस जमाने में भी हमारी वालिदा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, बहरहाल हम सब सुधरे तो सब सुधर गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकायदे वो लकीर खींच के चूल्हे के पास बैठती थी, वो पूरियां बनाती थी, हलवे बनते थे, पूरी बनाते थे, अगरबत्तियां सुलगाई जाती, वो सब सुलगा के मोमबत्तियां और भी जला के अंधेरे में एक खास कमरे में लीप पोत करके वहां अम्मा जो है रोटके के अंदर वो बाकायदे पूरियां और मिठाइयां और वो सब शीरनियां रख देती थी। हम लोग अगर मांगते थे तो कहते नहीं 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 नहीं, दूर हटो बेटा, ये मियाँ मियाँ होगा, यानी अल्लाह अल्लाह होगा, मेरा नियाज होगी, फातिहा होगा इसका। और बाकायदे वो रजब के कूड़े भर के फिर मुंशी जी मियाँ साहब आते थे, वो जनाब अली वहां फातिहा करते थे और फातिहा करके फिर उसे सबको बांटा जाता था। क्यों नियाज होती है? तो कहते हैं असल में मदीने के अंदर एक बादशाह रहा करता था और वो बादशाह के घर में एक नौकरानी थी। किसी बात पर बादशाह जो है उसके शौहर के ऊपर गुस्सा हुआ और उसको कत्ल का हुक्म दे दिया, जेल में डाल दिया। वो जो लकर हारन थी बेचारी, वो गरीब बादशाह के यहाँ वो भी आई रोते धोते। यार भाई वो कहानी है, लकर हारन आई लेकिन उसको बहरहाल शौहर को निजात नहीं मिली। तो एक दफा अपने घर में झाड़ू दे रही थी तो इत्तेफाक से एक गुजरने वाले कुछ लोग गुजरे तो उन्होंने कहा कि हजरत ये लकर हारन का, उन्होंने कहा ये लकर हारन जो है अगर जाफर सादिक की नियाज दे तो इसका शौहर बच सकता है। तो उसने जो है जाफर सादिक की नियाज सुन लिया और सुन करके जाफर सादिक की नियाज दी। तो चुनांचे उसके बाद नियाज दी, फातिहा करवाया, तो फिर उसका शौहर की जान बच गई और शौहर बच गया। वो लकड़हारन किसी ताल्लुक से बहरहाल महल में आ गई खिदमत उदमत करने के लिए। तो एक दफा बच्चा गायब हो गया बादशाह का। तो कहा कि रानी से कहा कि अगर आप जो है इमाम जाफर सादिक की कुंडा भरें तो आपका जो है काम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कैसे भरा जाता है? तो कहा ऐसा ऐसा है। तो बहरहाल उसने करा तो उसका बेटा वापस आ गया। अलमुहिम ये कहानी लकड़हारे की बताते हैं और कहते हैं कि इस तरह से जाफर सादिक के नाम की नियाज कराने से भरी मुरादें हो जाती, मुरादें पूरी हो जाती। मैं आपको एक बात बताता चलूं। देखें कहते हैं ना कि गप या झूठ जो होता है ना उसका सर और पैर नहीं होता। लोग झूठ बोल बड़े झूठ बोल करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सवाल ये पैदा होता है मदीने मुनव्वरा में कभी कोई इस तरह का हुक्मरान, ऐसा कोई बादशाह तारीख इस्लाम के अंदर कभी मौजूद नहीं है। ना इस्लामी तारीख में ना मदीने की तारीख में ऐसा कोई मौजूद है। और इसी तरह से आपको मैं बताता हूं, इसी तरह से न किसी लकड़हारे की न किसी बादशाह की, लकड़हारे कहां, वहां मदीने में लकड़ी उकड़ी का कहां, ये तमाम सब बकवास। दूसरी बात मैं आपको एक बात और बताऊं, आपको मैं एक बात और बताऊं कि 22 रजब को क्या मतलब है। हाँ, ये समझने वाली बात है। 22 रजब को असल में देखें शीये बड़े, ये यहूदी जो होते हैं ना, यहूदी काम अपना करते हैं, आपसे करवाते हैं, लेकिन उनके मतलब का होता है आपको अकीदत व मोहब्बत से किस तरह से उल्लू बनाते हैं। रजब 22 रजबुल मुरज्जब को आपको पता होना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, यूं समझिए ज़ौजे मोहतरमा हस्ते उम्मे सलमा हजरत उम्मे हबीबा के सगे भाई कातिबे वही 20 बरस तक बिला शिरकत गैरे
खिलाफत इस्लामिया की हुकूमत करने वाले हजरत जो क़यामत तक के मोमिनों के मामू हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मामू हैं वो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात हुई है 22 रजबुल मुरज्जब को। बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ आई समझ शरीफ में बात? 22 रजब को वफात हुई है सैयदना हबीबना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। शिये राफजी यहूदियों के कलेजों पर चरके लगते हैं जब अमीर मुआविया का नाम लिया जाता है और उनके साहबजादे हजरत यजीद रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है तो यहां अहलुस सुन्ना वल जमाअह के रास्ते तब्दील, यहीं पर कुफ्र और हक और बातिल और कुफ्र और इस्लाम आया हो जाता है, वाज़ेह हो जाता है कि कौन काफिर के साथ है और कौन मोमिन के साथ है। यहीं पर कौन यहूदियों का दोस्त है और कौन यहूदियों का दुश्मन है। तो हजरत अमीर मुआविया 22 रजब को आपकी वफात हुई है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास खाने काबा में बैठे खाना तनावल फरमा रहे थे इशा का रात का, और खबर आई कि अमीर मुआविया की वफात हो गई। कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास खाना छोड़ के उठ गए, आज एक अजीम शख्सियत का इंतकाल हुआ। अल्लाहु अकबर। जी जनाब अली, अब 22 रजब को जब वफात हुई हज़रत अमीर मुआविया की, कौन जानता है अहलुस सुन्नह वल जमाअह में ये बिदती, ये हलवे माढ़े खाने वाले खजूरे खन खजूरे, इनको क्या पता इस्लाम क्या है, दीन क्या है। इनको तो जैसा कि अभी वो भाई ने शेर पढ़ा कि जहां भी हलवे माढ़े मिलते हैं मुंह मारते सवाए खाने ले दो हल में मजीद पीने हलवे माढ़े चले जाए कुछ भी, ये इनको क्या पता, इनको किस दीन पे लग। इमाम जाफर सादिक को कहा अच्छा जो है उस दिन खुशियां मनाने के लिए आपकी वफात पर रजब का कूड़ा ईजाद किया गया। अब आप सोचेंगे कि तो फिर रजब के कूड़े की ईजाद करने के लिए जनाब अली तो बात समझ में आती है, चलो ठीक है, उनको खुशी हुई कि हज़रत अमीर मुआविया के, लेकिन जाफर सादिक का इस रजब 22 रजब से क्या ताल्लुक है? आपको हैरत होगी। जाओ, मेराज रब्बानी का चैलेंज है पूरी दुनिया के तारीखदानों से और पूरी दुनिया के मौलवियों उलमा से और जितने भी हलवे माडे रजब के कूड़े करते हैं, इनसे मेरा चैलेंज है, जाके ये तारीख में बताएं कि 22 रजब का किसी भी ताल्लुक से हजरत जाफर सादिक का कोई ताल्लुक नहीं, ना हजरत जाफर सादिक को डाला गया। आप कहेंगे कि हजरत को क्यों डाला गया? मैं आपको बताऊं इसकी वजह जाफर सादिक के बारे में बांग्लादेश जितने भी अपने आप को सुन्नी कहने वाले मुसलमान हैं, अक्सरियत अहनाफ की है। हनफी मतलब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ निस्बत करते हैं, हालांकि ये निस्बत खैर वो सच्ची या झूठी वो बात की बात है, क्योंकि जिस दीन और जिस मजहब पर इस वक्त अहनाफ हमारे बर्रे सगीर में मौजूद है वो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ना दीन है ना मजहब है। जैसे ईसाई अपने आप को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करते हैं, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के दीन और धर्म पे नहीं है वो। बिल्कुल इसी तरह से हमारे मुल्कों के अहनाफ इमाम अबू हनीफा के किसी भी अकीदे और अमल के ऊपर नहीं है, वो झूठे। इमाम साहब रहमतुल्लाह हमारे इमाम हैं, सारे इमाम हमारे इमाम हैं, इमाम अहलुस सुन्नह वल जमाअह। अगर ये हनफी, अब खैर वो मैं आपको ये बता रहा था कि फिर इमाम जाफर सादिक ही का कूड़ा, इमाम कूड़े के लिए इमाम जाफर सादिक को क्यों खास किया गया? उसकी वजह यह है कि शिया इस बात को जानते हैं कि के मानने वाले या उनके मुक़ल्लिदीन मुल्कों के अंदर ज्यादा हैं और इमाम अबू हनीफा शागिर्द हैं। अब ये बम फटने जा रहा है, शागिर्द हैं हजरत इमाम जाफर सादिक के। जाफर सादिक उस्ताद हैं हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के। शियों ने सोचा शागिर्द तो शागिर्द होता है, अगर शागिर्द के उस्ताद को बीच में लाया गया तो ये जितने भी इमाम अबू हनीफा के मानने वाले हैं ये सारे तो निस्बत करने वाले कहेंगे जब इमाम के उस्ताद हैं तो इमाम है, जब इमाम के उस्ताद इमामुल इमाम जाफर सादिक और ज्यादा उनके अफ़आल उनके अमल गया।
मैदान बिदअत और खुराफात के फरोग के लिए और अपने खुशी मनाने के लिए किसी को शक भी नहीं होगा, किसी हनफी को एतराज भी नहीं होगा। बांग्लादेश इस बात को मानते हैं और तकरीबन खुशियां मनाते हैं हजरत मुआविया की वफात की। अस्तगफिरुल्लाह। अब मनाओ खुशी, तब जाने हमें ये भी बताओ, अगर आप अपने आप को हनफी कहते हैं तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने खुशी मनाई? इमाम अबू हनीफा ने मनाया, रजब का कूड़ा भरा, अपने उस्ताद की नजर मानी? नहीं मानी तो तू झूठा हुआ कि नहीं हुआ भाई? तू झूठे हनफी हो, सिर्फ हलवे मांडे खाने के लिए इमामों को इस्तेमाल करते हो। ना अकीदा इमाम अबू हनीफा का, ना अमल इमाम अबू हनीफा का, ना किरदार इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का या किसी भी इमाम का। ये सारे इमाम हमारे सर आंखों पर अल्लाह इनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए। और ये हमारे इमाम मुख्तसर बहुत ज्यादा हो गई रजब के कूड़े की, 22 रजब की, जो 4 दिन के बाद आने वाली, और उसके 4 दिन के बाद 3 दिन बाद 27 रजब। शुरू हो जाएंगे ये फकीर अपने अपने शागिर्दों को महल्ले महल्ले शब मेराज रात सजाई जाती है, चोरी के बिजलियां लगा करके कुमकुमे चौक और चौराहे गली कूचे सजाए जाते हैं, आतिशबाजियां होती हैं, मिट्टी के चरागे घरों के मट्टियों के चिराग बना बना करके दरो दीवार सजाए जाते हैं, हलवा पकाया जाता है, रंगीन झंडियां कुमकुमे लगाए जाते हैं, वगैरह वगैरह। ये तमाम सब क्या शबे मेराज के उस पर, और कहा जाता है ये इबादत है और ये है सवाब समझकर, इबादत समझकर ये तमाम सब अमाल किए जाते हैं। तो हज़रात गिरामी, ये सारी की सारी बिदआत हैं, ये सारी की सारी बिदआत हैं, खुराफात हैं। आप सोचेंगे कि मौलाना आप शबे मेराज, आपको खुशी नहीं है कि अल्लाह के नबी मेराज में गए? आपको खुशी नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में जाकर के? मोहब्बत का ये है, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज हुई, और मेराज भी हुई से फिर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ गए और सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़े, जहाँ जिब्रील रुके और आगे बढ़े, और फिर अर्श तक पहुंचे, फिर अल्लाह से मुलाकात की, राज़ो नियाज की बातें हुई, नमाजें फर्ज हुई, जन्नत की सैर हुई, जहन्नम, सब कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। ये सब के ऊपर हमारा ईमान है, और जो ईमान न रखे वो काफिर है, और जो तोहमत लगाए वो भी मरदूद है, याद रखो। तो आइए हम देखते हैं कि इस महीने में हुई है, किस दिन हुई है, बात क्लियर हो जाएगी कि क्या जश्न मनाना भी ये खुराफात है, ये बिदात है, ये भी गलत है। हाँ बिल्कुल, ये खुराफात है, ये बिदात है, ये गलत है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, सहाबा की तालीम के खिलाफ है। आइए मैं आपको बताता हूं। और ना ही इस रात कोई इबादत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है, ना ही कोई रोजा, ना कोई इबादत, ना कोई क़याम, कुछ भी नहीं। अलबत्ता हमारा ये ईमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये रात, इस रात में बहुत बड़ा शर्फ बख्शा गया, और बहुत बड़ी अजमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शी गई, एजाज और इकराम वाला मामला किया गया, आसमान पर बुलाया गया, आपको हदिये दिए गए, नमाज के हदिये, उम्मत के बारे में, उम्मत के को कायम करे, और ये है पूरी पूरी तफसीलात। लेकिन ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें फजीलत है, इसमें उम्मतियों की फजीलत वाली कोई बात ऐसी नकल नहीं की गई है कि उम्मत की उनके इसमें कोई फजीलत है। अब आइए आपको बताऊं, शबे मेराज मेराज अफजल है या लैलतुल क़द्र जो रमजान में आती है वो अफजल है? इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया तो अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं कि शबे मेराज ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और इज्जत और शरफ और मंजिलत वाली रात है। इसमें उम्मत के लिए कोई शरफ और कोई और कोई साबित नहीं है, कोई ये बात साबित की वो इबादत करेगा इस रात में, वो
अल्लाह के नबी ने कहीं कोई हुक्म। चुनांचे ये बात मुतय्यन हो गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यह रात मोतबर और नहायत ही मुअज़्ज़ज़ है। उम्मत के हक में शब मेराज की कोई फजीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या अल्लाह से साबित नहीं हुई। इसके अलावा 27 रजब को होना शब मेराज का यह कतई है, इसकी कोई या इसकी रात या कब है, आइए मैं आपको बताता हूँ। इस सिलसिले में बहुत सारे असहाब सैर का तकरीबन 6, 7, 8, 9, 10, 11 अक़वाल हैं। हजरत इब्न सअद का है जो मारूफ तारीख मुअर्रिख हैं, साहब सीरा हैं, लिखते हैं कि मेराज हिजरत से 1 साल पहले कराई गई, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत जो हुई उसके 1 साल पहले करवाई गई। इब्न जौजी का कौल है कि मेराज हिजरत से 8 महीने पहले करवाई गई। सोचें, इख्तलाफ देखें, साल में इख्तलाफ है, कौन से साल में मेराज हुई। तो कोई कहता है 1 साल पहले, कोई कहता है 8 माह पहले। अबू रबीब ने सालिम कहते हैं कि हिजरत से 6 माह पहले। इब्राहिम हरबी का कहना है हिजरत से 11 माह पहले। इब्ने अब्दुल बर की राय है कि हिजरत से 1 साल और 2 माह पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज हुई। और इब्ने फारिस की राय है हिजरत से 1 साल और 3 माह पहले। सुद्दी ने हिजरत से 1 साल और 5 माह पहले का कौल नकल किया है। इब्नुल असीर ने हिजरत से 3 साल पहले का कौल इख्तियार किया है। जोहरी ने नकल किया है कि वाक़ई मेराज हिजरत से 5 साल पहले पेश आया। एक कौल 10वां कौल यह है कि बेसत से पहले मेराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हालांकि एक कौल है लेकिन इसकी तरह इसको जो है क्या कहते हैं मरजू करार दिया गया है। साल में कौन से साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की मेराज हुई है, किस महीने में हुई, इसमें भी इख्तलाफ है। चुनांचे साहिब अर्रहीकुल मख्तूम शेख सफीउर रहमान मुबारकपुरी और दीगर मुअर्रिखीन ने और साहिब सियर ने कहा, बहुत सारे उलमा के नजदीक कहते हैं कि रबीउल अव्वल के महीने में, रजब में नहीं बल्कि रबीउल अव्वल के महीने में वाकई मेराज पेश आया। नंबर 2, इब्राहिम बिन इसहाक हरबी कहते हैं रबीउल सानी के महीने में मेराज पेश आया। अब्दुल गनी बिन सरवर मकदसी कहते हैं कि रजब के महीने को तरजीह दी है और कहते हैं कि ये कौल मशहूर है, लेकिन तो गरज इस तरह से अजीजान गिरामी इख्तलाफ महीने में है। और रात, अब मेराज की रात कौन सी है, इस सिलसिले में अल्लामा ज़रक़ानी ने लिखा है, 3 अक़वाल लिखे हैं। एक तो यह कि जुमे की रात है, दूसरा हफ्ते की रात है और तीसरा पीर की रात है। चूंकि मेराज की तारीख में सख्त इख्तलाफ है, इसलिए इस रात की तायीन करना यह आसान नहीं है। जिन लोगों ने आज हलवे माठे के लिए एक तारीख मुतल्लिक़ 27 रजब, यह झूठ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी तारीख मैंने आप हजरात की खिदमत में रखी है। इससे पता चलता है जब साल में इख्तलाफ है, महीने में इख्तलाफ है, रात में इख्तलाफ है, तो 27 रजब कैसे कह सकते हैं आप? ये सिर्फ खाने पीने का एक धंधा है। 100 बरस तक जिंदा रहे। हमें कोई माई का लाल दलील दे दे कि किसी भी सहाबी ने ये कहा हो और रात को जश्न मनाया हो, जश्न शबे मेराज मनाया हो, कभी हलवे माढ़े चिरागा किए हो, एक भी कोई ज़ईफ से ज़ईफ, मरदूद से मरदूद बात कोई बता दे कि सहाबा ने क्या? आप क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में शक कर सकते हैं? मोहब्बत में, नबी से मोहब्बत के बारे में शक कर सकते हैं? उनकी मोहब्बत, अल्लाह अकबर, पूरी दुनिया को एक तराजू पे रख दो, सहाबा की मोहब्बत को सिर्फ अबू बकर की एक तराजू पे रख दो तो कोई उस दर्जे को नहीं पहुंच सकता। चे जाए कि जो है क्या कहते हैं खुद अपने आप को बहुत ज्यादा मोहब्बत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा, मेरा सहाबी एक मुट्ठी जो अल्लाह की राह में सदका कर दे और क़यामत तक आने वाले लोग उहुद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में सदका कर दें तो उस एक मुट्ठी जौ के बराबर भी वो उनका पहाड़ का सोना नहीं हो सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने इस रात में कोई इबादत नहीं की, ना ही उन्होंने कोई जश्न मनाया, ना ही उन्होंने वाज़ेह तौर पर बयान किया। हरगिज़ नहीं। अगर बयान होता तो इख्तिलाफ क्यों होता किसी भी सहाबी से? इसीलिए हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अम्मा अहलुस सुन्नह वल जमाअह फयक़ूलून फी कुल्लि फ़िअलिन व क़ौलिन लम यस्बुत अन सहाबा फ़हुव बिदअह। अहलुस सुन्नह इमाम इब्न कसीर तफसीर इब्न कसीर फरमाते हैं कि जो फेल जो कौल हजरत सहाबा साबित ना हो उसका करना बिदअत है। जरूर उसको नेक खसलत
को नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि वो गलत है। आपकी नजर में वो उम्दा है, आपकी नजर में वो अमल अच्छा है ना। तो ये है। और दूसरी बात ये है कि वाकया जैसा कि सुना आपने कि 5 नबी में पेश आया, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने के 5वें साल ये शब मेराज पेश आई। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब यह है कि इस वाकये के बाद 18 बरस ने शब मेराज के बारे में न बताया, न कोई खास हुक्म दिया, न इसको मनाने का हुक्म फाजिल फरमाया, न कोई इबादत, न कोई एहतिमाम। खुद आपने अपनी जिंदगी कोई हुक्म नहीं दिया, न तो आपसे न अपने जिंदा रहे। लेकिन इस पूरी 1 सदी में कोई भी एक वाक़या किसी भी वो जश्न शब मेराज मनाया हो, या नमाज पढ़ी हो, या सदका किया हो, या इबादत की करार देना, या इसको सुन्नत करार देना, या बाइस करार देना, ये सारा मामला बिदअत है। वो कुल्लु बिदअतिन दलाला, और बिदअत गुमराही। कौन सी रात फजीलत वाली है? कोई शख्स ये कहे कि सहाबा से मुझे ज्यादा इबादत का चस्का है और ज़ौक़ है, अगर सहाबा ने ये अमल किया तो मैं इसको करूंगा, तो उसके बराबर कोई मैं उसको करूंगा, अगर उन्होंने नहीं किया तो नहीं किया, मैं करूंगा, तो उससे बड़ा अहमक और उससे बड़ा खबीस आदमी और बददीन और बदमज़हब आदमी कोई नहीं हो सकता है। हकीकत यह है कि सहाबा समझने करता है तो वो बददीन और बदमज़हब है कि वो समझ नहीं रखता है। इसलिए यह है रजब की चंद। और इसी में एक चीज और मैं आपको हजारे रोजे की बात आती है। अवाम में मशहूर है कि 27 रजब को कोई रोजा रखे तो एक रोजे का अजर 1000 रोजे के बराबर मिलता है। हजारी रोजा ये भी बिदात और खुराफात है, झूठ है, ये अल्लाह के नबी की लाई हुई शरीयत के ऊपर बहतान है और ये इत्तिहाम है। इसलिए इन तमाम सब चीज़ों से दूर रहिए। तो रजब के कूडे हों या जो है जनाब आली और दीगर 27 रजबी हो या फला हो, रजबी शरीफ, ढकानी शरीफ, ये तमाम सब जैसा कि मैंने आपको वजाहत के साथ बताया, ये सारे के सारे दीन के अंदर ये फितना है, ये शर है, ये फसाद है, ये नए दीन का ईजाद है। इसके ऊपर अमल करने वालों से मेरी दरखास्त है और मैं दस्त बस्ता उनसे इल्तिमास करता हूं, लिल्लाह लिल्लाह लिल्लाह, अल्लाह के लिए, वो दीन जो हमारे और आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए हैं, जो अल्लाह ने हमारे लिए मुकर्रर फरमाया, हमें चाहिए कि हम उस दीन के ऊपर अमल करें और उससे बगावत न करें, क्योंकि उससे बगावत करना जिल्लत है, रुसवाई है और हिमाकत है और पागलपनी है। आज जो कुछ बड़े सगीर के मुसलमानों पर मुसीबत और परेशानियां हैं, इसकी बुनियादी वजह यही है कि उन्होंने दीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन अपने हाथों से छोड़ दिया। गैरुल्लाह के दरों पे सजदे करने लगे, शद्दे अलम चबूतरे पूजने लगे, गैरुल्लाह को पुकारने लगे। कोई कहता उनका वास्ता, कोई कहता गौसे पाक की दुहाई, कोई कहता फलाने की दुहाई, पीर फलाने की दुहाई, पीर फकीर की दुहाई, कोई कुछ अल्लाह को भूल गए। इसकी वजह से आप ये देखिए कि दुनिया के अंदर फितनों हुआ है, लोग अल्लाह के नबी के तौर तरीके से दूर। हमें चाहिए कि हम उसको समझें, जानें, इल्म हासिल करें, सवालात करें, पूछें और कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल करें। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह हमें कहने और सुनने वालों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हजरात के कहाँ गए? जूम बैठे हैं तो सवालात करें। अब्दुल्ला भाई
ताकि उनके जवाब दिए जाएं फटाफट। फेसबुक वाले भी सवाल कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर जो हमारे अहबाब बैठे हुए हैं, सवाल करना है वो सवाल करें। जी जी, आप लोगों की तस्वीरें नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, हमें नहीं आ रही, हमें भी दिखाओ। कुछ नहीं है ना? आ रही आवाज आ रही है। हाँ हाँ, जिसको भी सवाल करना है शेख से आप डायरेक्ट करें। जी अब्दुल जब्बार साहब, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। अब्दुल जब्बार साहब, जिसको भी सवाल करना है वो सवाल करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम, के पास डॉलर हो और वो उसके इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे जो पैसे मिलते हैं इन्वेस्ट करने पर, तो क्या उसका लेना जायज है? जबकि उसमें ये रिस्क होता है कि मार्केट कभी भी डाउन हो सकती है, कभी भी अप हो सकती है, और फायदे का चीजें मौजूद होती है। यानी एक तरह से इंसेंटिव जो आता है शेख, उसके बारे में पूछ रहे हैं कि क्या वो ले सकते हैं, जायज है या नहीं है? ये मुझे समझ नहीं आई सवाल समझ नहीं आया मुझे भाई, ये मुझे समझ नहीं आया सवाल, इसलिए मैं इसका जवाब कैसे दूं। डॉलर जी फरमाइए। जी, यानी पूछा जा रहा है कि अगर किसी के पास डॉलर हो और वो उसकी इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करता हो, उससे इंसेंटिव मिलता हो, इंसेंटिव मतलब लगाने पर महीने में कुछ मिलता है पैसे, समझे? जी जी जी, इंसेंटिव मिलता हो तो उसका लेना जायज है या नहीं है? जबकि उसमें रिस्क होता है कि मार्केट कभी अप होती है, कभी डाउन होती है, यानी नुकसान और मुनाफा दोनों जो है उसमें मौजूद है। लेकिन वो डॉलर लगाता किसमें है? किसी यानी एक तरह से इंडियन रुपीस है, तो वो किस चीज में लगाता है? इंटरनेशनल मार्केट है, जैसे ये जो होता है हमारा इंटरनेशनल में, ये रहने दें ये सवाल, कोई और सवाल की तरह कोई और सवाल करें। नहीं, मुझे नहीं पता इस सिलसिले में, मुझे इस सिलसिले में नहीं मालूम है जी। कोई दूसरा सवाल करें। ठीक है शेख, ठीक है जज़ाक भैया। और मुझे कहा था कि सैयद उस आदमी के नाम के जिसने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखा, तो क्या ये बात सही है या गलत है? इस पे थोड़ा रोशनी डालिए। नहीं, हमारे यहाँ हमारे मुल्कों के अंदर सैयद सादात ये उनको कहा जाता है जो ये कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से या उनके आले मसलन यानी औलाद के ख़ानदान से हैं, समझ रहे हैं? उनको सैयद वो लोग अपने आप को कहते हैं, ठीक है? तो वो अपनी निस्बत करते हैं वहाँ। अब वो सच है गलत है, वो कहाँ तक दुरुस्त है, उसकी ना कोई तहकीक है ना कुछ पता लता है। माँ बाप से सब सुनते आए हैं, ये फलाने ख़ानदान के हैं, ये फलाने ख़ानदान के हैं, ये फलाने ख़ानदान के हैं, बस उसी हिसाब से वो चलते हैं। लेकिन कोई ये इसमें कोई कबाहत नहीं है, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने आप को कुरैशी कहते थे, कुरैशी ख़ानदान के थे। जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं अपने आप को हरबी, अपने आप को शम्मरी, अपने आप को उतैबी, अपने आप को हिजाजी, अपने आप को मुख्तलिफ कबीलों से मंसूब करते हैं। तो कबीलों से मंसूब होना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, हमने तुम्हें मुख्तलिफ कबीले मुख्तलिफ ख़ानदानों में पैदा किया है, लितआरफू, ताकि आपस में तारुफ के लिए, आपस में पहचान के लिए, शनाख्त के लिए, मेल जोल के लिए। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये बनाए हैं। अगर कोई शख्स इसको बाइसे
इज्जत समझता है कि मैं इस कबीले से मंसूब होकर मैं इतना बड़ा हूं, मैं फला हूं, मैं जन्नती हूं, कोई कमजोर है तो वो जहन्नमी है, या अल्लाह ताला ने इसकी आगे नफी फरमाई और फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सबसे ज्यादा शरीफ और तुम में सबसे ज्यादा नेक और अच्छा वही है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है। तो असल मेयार तकवा है। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। सैयद कबीले के खानदान, कुरैशी खानदान के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपके चचा अबू तालिब भी कुरैशी थे, लेकिन आप जहन्नम में गए। आपके वो भी कुरैशी खानदान था, जहन्नम में गया। तो खानदान और कबीले होने का ये में ले जाएंगे। हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, उनका सगा बेटा, आंखों के सामने डूबता हुआ जहन्नम में चला गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सगे जहन्नम में जाएंगे। हजरत आसिया जो थी, आपको पता है किसकी बीवी थी, फिरौन जैसे हिलाक किया, लेकिन उसका कुफ्र हजरत आसिया को जो है जेर नहीं कर सका, मुतस्सिर नहीं कर सका, और हजरत आसिया के लिए अल्लाह ने जन्नत में घर बनाया और उन्हें जन्नत में डाला और फिरौन को जहन्नम में। अलगरज कहने का मतलब यह है कि कबीले, ये खानदान, ये सिर्फ शनाख्त और पहचान के लिए हैं, न कि गुरूर और घमंड और बरतरीयत और के साबित करने के लिए है, या शादी ब्याह न करने के लिए है। ये तमाम सब काफिरों के जरिए से आई हुई बलाएं हैं जो हमारे यहाँ आई हैं। असल चीज इस्लाम है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाबंदी है। शिर्क और बिदअत, वो चाहे सैयद हो, चाहे वो अपने आप को कुछ भी कहे, शेख हो, पठान हो, अगर वो मुशरिक और बिदअती है, वो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना उलाइका हुम फी नारे जहन्नम उलाइका हुम शर्रुल बरिया। ये मुशरिक अहले किताब हों या मुशरिक हों, काफिर हों, मुशरिक हों, ये जो है जहन्नम में होंगे और ये बदतरीन मखलूक हैं। कायनात की सबसे बदतरीन मखलूक में इनका शुमार होगा। तो मेरी बहन, ये बात अच्छी तरह से याद कर लें, ठीक है? ये है डिफिनेशन इस बात की। जी सर, और कोई सवाल? जी, और ये सवाल है कि क्या जिक्र किया गया है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ज़माने से जी मुझे मालूम है, जैसा कि बता रही हैं कि जमाने के साथ साथ चलो, नहीं मालूम है, ऐसी किसी भी चीज का मालूम नहीं है, न सही, न मौजू, न ज़ईफ, किसी भी रिवायत का मुझे पता नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा है। जल्दी सवाल करें। एक और सवाल है, बस एक और सवाल है कि क्या मतलब कि औरतों का ये दुआ मांगना जायज है कि अल्लाह हमें अपने कदमों पे खड़ा कर दे, या फिर है ना अपने ऐसा कामयाब करेगी का मतलब कि क्या बोलते हैं, जैसे कि अपने खुद औरत अपने कामयाबी के लिए दुआ कर सकती है? जी बेशक बेशक, बिल्कुल बेशक, रात दिन दुआ कर सकती है। आपने क्या समझा है? औरत क्या किसी मर्द की गुलाम है? औरत किसी मर्द की गुलाम नहीं है। औरत किसी की रखायल नहीं है। औरत किसी के पैर की जूती नहीं है। औरत को वो शर्फ और मकाम अल्लाह ने बख्शा है कि औरत वो ज़ात है, वो हस्ती है कि उसके पेट से नबियों ने जन्म लिया है। औरत की गोद जो है ये पहला मदरसा है। औरत ये इंसान मर्दों के लिए सुकून कल्ब का जरिया है। औरत के वजूद से ही इस कायनात के अंदर हुस्न है और जमाल है और औरत को के अंदर तुम्हें इबादत करें और अल्लाह
ने औरत, ये नहीं कि अगर इस्लाम, ये नहीं दीन में कि जिस तरह औरत को पैर की जूती दी, इस्लाम ने तलाक देने का हक दिया है, तो औरत को भी इस्लाम ने खुला लेने का हक दिया है। आजकल हिमाकत और जहालत और चंद शरपसंदों की साजिशों से, अभी 2-4 दिन पहले जो वायरल हुई हैं तस्वीरें, वो एक छोकरी की जो खड़े होकर के हंस हंस कर समंदर दरिया के किनारे वीडियो बना दी, मुझे तो उसके ऊपर शक है, ये मुझे शक है उसके माँ बाप, उसके माँ बाप कि उन्होंने उसके ईमान की तरबियत नहीं करी कि इस्लाम के अंदर क्या कहते हैं, खुदकुशी करना हराम है। ये जान अल्लाह की अमानत है, किसी को लेने का हक ना हक तरीके पर इसको हासिल नहीं है। तो इस्लाम ने मना किया है, अल्लाह ने मना किया खुदकुशी करने से, यहाँ तक कि ठीक है काफिर करार दिया गया, वो जहन्नम में खुदकुशी करने वाला, तो बात है कि अल्लाह की मर्जी, बाद में वो आप जन्नत में डाला जाए वो बात की बात है। लेकिन नमाज जनाजा के ताल्लुक से इस्लाम ने कहा कि मारूफ और मशहूर और बड़ी हस्तियां उसकी नमाज जनाजा ना पढ़े। अब ये औरत वायरल हुई, इसकी तस्वीर कि इसने वहां तक तो बताया कि अब मैं पानी की लहरों में डूबने जा रही हूं, उसके बाद उसकी लाश का कहीं कोई पता नहीं, वीडियो के बाद खत्म है, क्या उसकी लाश नजर आई? मैं आज एक सवाल वो फेसबुक के ऊपर डाला कि भाई उसकी लाश कहीं किसी ने देखी, उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई गई, किसने पढ़ाई, कौन है, फोटो वायरल हो रहा है, ये तो उसके माँ बाप हैं, सब कुछ ये वायरल होना चाहिए। आज के दौर में ये क्यों छुपाया गया? उसमें हमारे अल्लाह उन्हें हिदायत दे, ये क्या बताऊं, ऐसे गपास्टिए रहते हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत, उसके ऊपर लिखता है आप सबर करें, उनके तीजे में आपको बुलाया जाएगा। ये कैसी जहालत, ये मुसलमान है खबीस, ये ऐसी बातें करते हैं, जवाब देते हैं, इनके माँ बाप ने यही तरबियत की है। अरे हमने सवाल किया है, तहकीक करो, पता नहीं ये दुश्मनाने इस्लाम की साजिश इस्लाम को बदनाम करने की हो, जब इस्लाम का ये वसूल मौजूद है कि औरत को भी आजादी है, औरत को भी तलाक हक है, बई तौर की वो तलाक का मुतालबा करे अपने शौहर से, उसका जीना। ये क्या मतलब है कि जाके खुदकुशी कर ले, जाके फंसरी लगा ले, जहर पी ले दरिया में, और वो भी बाकायदे वीडियो बना करके? ये क्या है? ये गुजरात की सरजमीन का फितना हो सकता है? मुझे तो फितना लग रहा है, ये मुझे फितना लग रहा है जनाब अली। ये बाकायदे करके किसी वीडियो बना करके और करने, देखो लड़की जैसे पूरा देश इन तमाम खुराफातों से जूझ रहा है, उसका कहता है हमने जैसी रूह वैसे बच्चे, जैसे माँ बाप से बच्चे, तो ये बात मेरी बहन को मालूम होना चाहिए। और जहां तक मेरी आवाज आ रही है पूरी सबको, किसी तरह से मजबूर नहीं हो, अगर तुम्हें किसी शौहर के साथ तुम्हारा निभा नहीं हो रहा, तलाक का मुतालबा करो, तलाक नहीं देता, अदालत के अंदर करके खत्म करो मामला, किसी और मर्द से शादी करो जो तुम्हारे लिए अच्छा हो। इजाजत है, बगैर औरत की इजाजत के निकाह नहीं किया जा सकता। अपने बहन या अपनी बेटी की बगैर उसकी मर्जी के मुताबिक निकाह नहीं कर सकती। ये इस्लाम के बुनियादी अवामिर हैं। ये जाहिल मुसलमान रोजी रोटी खाने के अंदर भी कोई तालीम नहीं, कोई तरबियत नहीं, ना कुरान ना हदीस रसूल, खुराफात के अंदर जूझ रही है। तो हर औरत को हक है कि वो तरक्की करे, वो आगे बढ़े, वो जो है क्या कहते हैं फौजी बने। लेकिन ये तमाम के उसूल हैं और ज़ाबते हैं, कायदे। हमारे मुल्कों में फौजी बनेंगे तो दूसरे दिन आपको पता है हशर क्या होने वाला है। फौजी बनने से पहले न जाने कितने भेड़िए भगोड़ते हैं। हमारे ये इस्लामी मुल्क है, सऊदी अरब के अंदर बाकायदे पुलिस की टीम है, सऊदी अरब के अंदर फौज की टीम है, खलीज के अंदर, और भी बाकायदे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बाकायदे मुदर्रिसात हैं, बाकायदे नर्सें हैं। सऊदी बकरियां तक चराती हैं, बकरियों से करके। अब आप सोचिए कि जनाब अली पार्लियामेंट मजलिस शूरा तक औरत पहुंच गई कि उससे मशवरे लिए जाएं। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई मसला पेश आता था तो औरतों से मशवरे करते थे। हजरत सलमान ने मौके पर कितना अच्छा मशवरा दिया कि वो पूरे लोग नाराज होकर बैठे
बैठे हुए थे, अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि अपने अपने जानवर ज़बह करो, हदिये ज़बह करो, कोई तैयार नहीं। अल्लाह के नबी क्या हो गया है, जानवर नहीं हो रहा। अल्लाह 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 अल्लाह। हजरत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन ने बड़े प्यार से अपने शौहर नामदार पैगंबर इस्लाम और लगे हैं जो सुलह हुई है उनके में मानते हैं। ज़बह करें, आप अपने बालों को कटाएं, ये मंजर देखकर सहाबा ज़बह करना शुरू कर दिया। औरत का मकाम है, यह औरत का रुतबा है। अल्लाह के मैं तुम्हें अपने हाथों से गुस्ल दूंगा, नहलाऊंगा, तुम्हारे कफन पहनाऊंगा, फिर अपने हाथों औरत को अपनी बीवी को नहीं छू सकता, देख नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, ये मुल्ला अपना दीन बना। तो क्या होगा ऐसे हदीस और कुरान का मजाक और जहालत मौजूद हो तो जाहिर है कि लोग वही काम करेंगे जो उनकी मर्जी में आएगा, जो उनके दिल में आएगा। यहां से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बीवी हजरत फातिमातुज़ ज़हरा जो नबी कायनात की जो है साहबजादी सैयदा सरकार जन्नत है, जन्नत जन्नत सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनकी ज़ौजे मोहतरमा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की अम्मा अरवा या क्या नाम था, बहरहाल उन्होंने बाकायदे हजरत अबू बकर सिद्दीक को गुस्ल दिया, नहलाया, दफनाया, कफनाया। कोई भी मर्द अपने औरत को गुस्ल दे सकता है और कोई भी औरत अपने शौहर को गुस्ल दे सकती है। मोहब्बत की बात है, ये जिंदगी का क्या मतलब है कि सांस निकलते ही जनाब अली वो रिश्ता खत्म हो गया? ऐसा नहीं है। ये सब जहालत मौलवियों के अंदर फसाद ही फसाद, सुन्नत के खिलाफ गए, फसाद शुरू, शर शुरू, के अंदर पार्लियामेंटों में बैठकर इस्लाम को टारगेट बनाकर उसका मजाक उड़ाते हैं, मजाक करते हैं, तमस्खुर करते हैं। अल्लाह इन मौलवियों को हिदायत अता फरमाए, अल्लाह सुन्नत की समझ अता फरमाए, अल्लाह औरतों के रुतबे और मकाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। और औरतों को भी चाहिए कि वो अपने रुतबे और मकाम को समझें कि हमारा मकाम इस्लाम के अंदर क्या है, हमारी इज्जत आबरू क्या है, इस तरह के क्या करें। लेकिन इस मसले को आम करना चाहिए कि ससुराल ताना दिया, सब क्यों ना हो, एक मंडी जमीन क्यों ना हो, एक बिघे की जमीन हो, एक कोने का घर ना हो, उसके बाद अपने भाइयों ने, बहनों ने दिया, बेटों ने, भाइयों ने और दिया है तो, और या बाप ने दिया है तो उसका किसी शौहर के नाम नहीं करे। किसी शौहर के हाथ नहीं देना, इसका कल को कुछ करेगा मांगो, हरगिज नहीं। यहां भी अरब में अपने हिस्से में औरत रखती है, किसी शौहर के नाम न दुकान होता है, मकान होता है, उसका अपना जाती होता, मर जाती तो उसकी आल औलाद को फिर उसको शौहर में वो वक्फ हो जाता है। बहुत सारी चीजें मसाइल हैं की वजह से और कुरान और सुन्नत की वजह से हम जो है इस्लाम के ऊपर जुल्म करते हैं। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए कि हम कुरान और हदीस के ऊपर अमल करें, फिर देखो किस तरह से खुशियां रहेंगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मेरा ख्याल है बात समझ में आ गई होगी, लंबी हो गई थोड़ी, इसलिए इसके लिए मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन इसकी वजाहत बहन ने जो करी है
बहुत अच्छा सवाल करी, हाँ, और उसकी वजाहत हो गई इंशाअल्लाह ताला। जी और कोई सवाल? और सवाल कोई है? कोई सवाल है जो पूछना चाहते हैं आप लोग, पूछ लीजिए। आज के ये जी और कोई सवाल? अब्दुल्ला साहब, जिसका भी सवाल हो जल्दी सवाल कर ले। आपका कोई सवाल करना हो। सुफैरा नाज आप। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल है कि हम लोग के पास पैसा कितना भी होता है तो उसका 2.5% ज़कात देना से कम होगा। अगर वो जेवर आपका 52.5 चांदी या 7.5 तोला सोना, अलग अलग, ये नहीं कि दोनों को मिलाकर, नहीं, अलग अलग। अगर 7.5 तोला सोना और उससे ज्यादा है तो उसके ऊपर ज़कात है, ठीक है। अगर 52.5 तोला चांदी है तो उसके ऊपर, और उससे ज्यादा है तो उसके ऊपर ज़कात है। वो पैसा हो, जरूरी है कि उसके ऊपर 1 साल गुजर गया हो। आपने सोना खरीदा लेकिन 8-9 महीने के बाद वो आपने बेच दिया, तो अब वो तो सोना आपके पास रहा नहीं, तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है। साल भर होना जरूरी, पैसा हो या सोना हो या चांदी हो। जी एक सवाल है कि मनी जब खारिज होता है तब गुस्ल फर्ज होता है या नहीं? जब भी मनी खारिज होगी, सवाल जो करने वाले ने किया है कि मनी जब मर्द या औरत कोई हो, फर्ज हो जाता है, वाजिब हो जाता है। और कोई सवाल इसमें नहीं है? फेसबुक पे किसी भाई का सवाल है तो जल्दी कर लें, 1-2 मिनट बाकी भी। आज का प्रोग्राम चला बराबर सक्सेस? कोई डिस्टर्ब तो नहीं हुआ अब्दुल्ला साहब? नहीं